Hello class. In today's video lecture, we, as you know, are studying about the classification of the elements in the chapter the periodic classification of the elements. In this series, today we will start the third attempt to classify the elements, which is called the Mendeleev's classification of element, in which the Russian scientist Dmitry Mendeleev proposed a law called Mendeleev's periodic law. According to that, if elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then they will repeat their properties after a certain interval. यहाँ पर क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल एंड बिफोर इट व्हाट इज पीरियोडिसिटी. तो इन दोनों का एक कंबाइंड आंसर मैं आपको बताता हूँ कि पीरियोडिसिटी इज द प्रॉपर्टी इन विच elements repeat their properties after a certain interval. Okay, and when according to the repetition of the property, when the elements are arranged in a sequence, then that sequence is called the periodic table. Okay, so what is periodic table? Periodic table is a chart of elements having similar properties present in some vertical columns और groups. यानी periodic table में दो चीज़ें मेनली होती हैं. कौन कौन सी होंगी? उसमें या तो ग्रुप्स होंगे और पीरियड्स होंगे. ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन द periodic. So class, the first attempt to arrange the uh, elements in a tabular form was done by Mendeleev. So this table proposed by Mendeleev is also called the Mendeleev's periodic table. It is the most important classification of elements given by the Russian chemist Dmitry Mendeleev in 1869. Okay. Now, what is Mendeleev's periodic law? The properties of elements are the periodic function of their atomic masses. Means इस लॉ का ये मीन निकलता है कि अगर एलिमेंट्स को हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज कर दें तो उनके प्रॉपर्टीज़ एक सर्टेन इंटरवल के बाद सेल्फ रिपीट हो जाती हैं. Okay, so the properties of elements are the periodic function of their atomic masses. It means that the elements are arranged in increasing order of their atomic masses. Then the properties of elements are repeated after a certain regular intervals. Okay, अब ये देखा जाए कि ये जो पीरियोडिक टेबल है ये बेसिकली किन किन चीज़ों पर बेस्ड है. तो उसमें फर्स्ट पॉइंट है दैट द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ऑल द क्लासिफिकेशंस डन बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट, वन थिंग इज कॉमन दैट द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक masses. Like it, in the Mendeleev periodic table, the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses. Now, grouping together elements having the similar properties. इसके बाद उन्होंने एक पॉइंट और लिया था कि उन्होंने अरेंज तो कर दिया एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और सेम ग्रुप्स में उन्होंने
एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को ही रखा। ठीक है, इट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। नाउ क्लास, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, क्या क्या इसकी विशेषताएं थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। दिस टेबल बेसिकली कंटेन्स horizontal rows and some vertical lines. The horizontal rows are called period, which are 6 in number, and the vertical columns are called groups, which are in this table 8 in number. Okay, the Mendeleev in Mendeleev periodic table, he left some gaps for the elements which were undiscovered at that time. मेंडलीफ ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ दी थी जो कि उस समय भी अनडिस्कवर्ड थे, इनको डिस्कवर नहीं किया जा सका था। ठीक है, तो उसने इस तरीके से 3 गैप अपनी पीरियोडिक टेबल में छोड़े थे, और इन गैप्स में आने वाले एलिमेंट्स का जो उसने नॉमिनेशन दिया था, उन एलिमेंट्स को उसने एका वर्ड से उनका नाम स्टार्ट करके किया था। फॉर एग्जांपल, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन एट्सेट्रा। यहाँ पर जो एका वर्ड है, एका वर्ड संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका इंग्लिश में मीन्स होता है फर्स्ट टू कम। फर्स्ट टू कम मीन्स कि बोरॉन, एका बोरॉन वो एलिमेंट होगा जिससे जस्ट पहले बोरॉन आता है, यानी जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा, स्कैंडियम जिसकी बात हम कर रहे हैं, जिसको बाद में स्कैंडियम बोला गया जब वो डिस्कवर कर लिया गया, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बोरॉन से मैच करेंगी। ओके, लाइक इट द एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम को जब डिस्कवर किया गया तो एल्यूमिनियम के एका एल्यूमिनियम वाला जो एलिमेंट था उसको बाद में गैलियम नाम दिया गया। Okay, now later on the eka boron was named as scandium, eka aluminium was named as gallium, and eka silicon named as germanium. Now, merits or achievement of this table. All the then known elements were arranged in the periodic table or tabular form on the basis of their increasing order of their atomic masses। यानी सारे उस समय के डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो कि आई थिंक 63 एट दैट टाइम, उन सारे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई। ठीक है, मेनली पीरियोडिक टेबल एग्जिस्टेंस सेम एलिमेंट्स दैट हैड नॉट बीन डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो कि उस समय अनडिस्कवर्ड थे, और उनको भी इस पीरियोडिक टेबल में स्पेस दिया गया इन द फॉर्म ऑफ ए गैप, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। इसके बाद हिज पीरियोडिक टेबल कुड प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यानी मेंडलीफ ने उन अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की को जो उसने गैप के फॉर्म में अपनी पीरियोडिक टेबल में जगह दी थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी प्रेडिक्शन कर दिया कि उनकी प्रॉपर्टीज़ उस ग्रुप में प्रेजेंट अदर एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ से मैच करेगी। द नोबल गैसेस विच वर डिस्कवर्ड लेटर could also be placed in the separate group without disturbing the existing position of the elements। यानी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि नोबल गैसेस जिनको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल आने के बाद में डिस्कवर किया गया था, उनको भी इस टेबल में एक सेपरेट ग्रुप बनाकर स्पेस दे दिया गया, जिससे कि बाद में अदर एलिमेंट्स की पोजीशन डिस्टर्ब नहीं हुई। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डीमेरिट्स और लिमिटेशन ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। जैसा कि आपको पता है कि हर कंसेप्ट जो कि नया आता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह ही जाती हैं, जिसको पूरा करने के लिए एक नया कंसेप्ट बाद में प्रपोज होता है। इसी तरीके से इसी सीरीज़ में
मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी कुछ कमियां रह गई थी जिसको हम अब स्टडी करेंगे। इसमें पहली कमी जो थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, दैट वाज द पोजीशन ऑफ आइसोटोप। जैसा कि आप जानते हैं कि आइसोटोप आर द एलिमेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब जैसा कि आपको पता है कि एलिमेंट्स को मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखा गया है। तो एक ही एलिमेंट जिसके दो एटॉमिक मासेस हैं उसको दो बार कैसे रखा जाए, इस क्वेश्चन का आंसर मेंडलीव के पास नहीं था। इसलिए वो आइसोटोप्स को डिफरेंट आइसोटोप्स को, जैसे कि आपको पता है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, उन दोनों आइसोटोप्स को और अदर आइसोटोप जो कि उस समय नोन थे उनको अपनी टेबल में मेंडलीव पोजीशन देने में असफल रहे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन। कुछ एलिमेंट्स का उन्होंने एटॉमिक मास को फॉलो नहीं किया था, अपने ही रूल को अपनी इस पीरियोडिक टेबल में फॉलो नहीं किया था। फॉर एग्जांपल द एलिमेंट्स कोबाल्ट हैविंग हायर एटॉमिक मास यानी 58.9 कम्स फर्स्ट देन द निकल, यानी निकल का जो कि एटॉमिक मास कम है उसको बाद में स्पेस दिया गया है, जबकि कोबाल्ट को पहले रख दिया गया है। तो ऐसा क्यों था, इसके बारे में मेंडलीव के पास कोई आंसर नहीं था, लेकिन उन्होंने रखा इसलिए था क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ इनके ग्रुप के एलिमेंट्स से मैच कर रही थी, तो उन्होंने वहाँ अपने ही रूल का वायलेशन कर दिया। ओके। नाउ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि आपको पता है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नॉट डिफाइंड थी। नॉन डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन दो जगह उसको पोजीशन दिया गया था, पहला फर्स्ट ग्रुप और दूसरा सेवेंथ ग्रुप। सेवेंथ ग्रुप मीन्स हेलोजन्स। ओके। हाइड्रोजन कुड बी प्लेस्ड इन बोथ द ग्रुप्स फर्स्ट ए एंड सेवेंथ ए। द कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इज सिमिलर टू बोथ एज विद द एल्कली मेटल्स एज वेल एज द हैलोजन्स। आप देखिएगा कि हाइड्रोजन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी वो है 1, जिसको हम वैलेंसी भी बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट यानी एल्कली मेटल्स और सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स यानी हैलोजन्स, ये दोनों की ही वैलेंसी 1 ही होती है और दोनों की ही कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 होने के कारण दोनों के जो एलिमेंट्स भी बनते हैं ये भी सेम तरीके से ही फॉलो होते हुए बनते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मेंडलीव ने हाइड्रोजन की पोजीशन को दो जगह अपनी टेबल में दिखाया गया है, जिसको हम ग्रुप नंबर 1 यानी फर्स्ट ए ग्रुप में और ग्रुप नंबर 7th ए, जिसको बाद में 17th ग्रुप बोला गया है, हैलोजन ग्रुप बोला गया, उसमें शो किया गया है। नाउ क्लास, these are the main drawbacks of this periodic table. So you have to learn about the merits and demerits of this periodic table. No need to learn the periodic table made by Mendeleev because in your course there is no importance of this table to learn the groups or other things about this table, क्योंकि आपके कोर्स में जो मेनली आपको याद करना है कुछ ग्रुप्स और कुछ पीरियड्स, वो आपको याद करने होंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। थैंक यू।